Yes, good morning, class. We are going to start for today. Okay. Earlier, I have defined some graph terminologies. Now, moving further, as I have defined earlier that using handshaking theorem, we are going to define that the sum of degree of vertices is 2 times the number of edges. Okay. We have taken one example also for that. Now, we are going to define this in context to directed graph. Okay. Here we are saying that whenever UV is an edge of the graph with directed edges, then U is called to be adjacent to V and V is called to be adjacent from U. Okay. Whenever there is directed edge from vertex U to vertex V, okay, in that case, U is called adjacent to U, V, and V is called adjacent from U. Okay, because the direction is from U to V. Okay, that's why this one. Okay, so we have used this two, adjacent to and adjacent from. To means जहाँ से वो एज स्टार्ट होती है and from means जहाँ पे वो एज टर्मिनेट हो रही है. That's why the vertex U is called to be as initial vertex क्योंकि वहां से वो एज स्टार्ट होती है and vertex V is called to be as terminal or end vertex. Okay, and if you talk about the loop edges, in that case the initial vertex and the terminal vertex will be the same. Okay, as I have told you, whenever we are talking about loop vertex, in that case the initial and end point or the terminal point, that will be same. Okay, now here earlier we have defined one term that is called degree of a vertex, where degree of a vertex in undirected graph is defined to be as the number of edges incident with the vertex. Okay, किसी भी वर्टेक्स से कितनी एजेस कनेक्टेड हैं उस पे जो है उस वर्टेक्स की हम डिग्री डिफाइन करते हैं. ठीक है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में था क्योंकि जब भी हमारे पास कोई एज होगा वर्टिसेस के बीच में तो वो वर्टिसेस एडजेसेंट कहलाएंगे. लेकिन whenever we are talking about this directed graph, in that case the edges will have some direction also, and due to that direction now this degree term is defined to be as in degree and out degree. Okay, so whenever we are saying in degree means it is the number of edges incident with V as their terminal vertex. यानी किसी वर्टेक्स V से जो है कितनी एजेस एज ए टर्मिनल वर्टेक्स जो है उससे इंसिडेंट हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी एज द इन डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स. ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एजेस जो उस वर्टेक्स पे आके टर्मिनेट हो रही हैं उसको हम उस वर्टेक्स की इन डिग्री में काउंट करते हैं, और वो सभी नंबर ऑफ एजेस जो उस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही हैं यानी कि जो उस वर्टेक्स वी को एज ए इनिशियल वर्टेक्स ट्रीट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी एज आउट डिग्री. ठीक है, यहाँ हम इन डिग्री को डिग्री विथ सुपरस्क्रिप्ट माइनस साइन यूज कर रहे हैं और आउट डिग्री के लिए हम डिग्री विथ सुपरस्क्रिप्ट प्लस साइन यूज कर रहे हैं. ठीक है, earlier we have used only deg of V for denoting degree, but in case of directed graph this degree has been defined as in degree and out degree depending on the direction of the edges. Okay, तो किसी वर्टेक्स से कितनी एजेस स्टार्ट हो रही हैं दैट इज कॉल्ड टू बी एज आउट डिग्री, और किसी भी वर्टेक्स से कितनी एजेस जो है टर्मिनेट हो रही हैं दैट इज कॉल्ड टू बी एज इन डिग्री. इन डिग्री के लिए हमने डिग्री माइनस साइन यूज किया है और आउट डिग्री के लिए हमने डिग्री प्लस साइन यूज किया है. Here one thing we have noted here, that is a loop at a vertex contribute one both to the in degree and out degree, क्योंकि मैंने बताया था आपको in case of undirected graph अगर loop है तो उसका डिग्री में कंट्रीब्यूशन 2 का होता है क्योंकि वही उसके लिए सोर्स होता है और वही उसका सिंक होता है यानी डेस्टिनेशन होता है. ठीक है, लेकिन जब हम डायरेक्टेड ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो उस केस में जो है लूप का कंट्रीब्यूशन इन डिग्री में भी 1 का होता है और आउट डिग्री में भी 1 का होता है. ठीक है, अगर किसी वर्टेक्स पे लूप एज है तो उस केस में उस वर्टेक्स के इन डिग्री में भी +1 होगा और आउट डिग्री में भी +1 होगा ड्यू टू दैट लूप. ओके,
So, so these are the some terms we have defined. Now that all has to be demonstrated by this example. ठीक है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, आप देख सकते हो ये डायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि जो एजेज हैं वो सभी डायरेक्टेड एजेज हैं, बिकॉज देयर इज सम डायरेक्शन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अदर. ठीक है, जैसे यहाँ ए से बी के लिए ये एज है. ठीक है, तो यहाँ पे ए इसका सोर्स वर्टेक्स हो गया इस एज के लिए, और बी जो है इसका टर्मिनल वर्टेक्स हो गया. ठीक है, आप यहाँ से कह सकते हो कि ए इज adjacent from B, or you can say B is adjacent to A. ठीक है, here we can say A is adjacent from B, or you can say B is adjacent to A. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A और B के बीच में वर्टिसेस एजेज हैं, यहाँ पे ये एज है. ठीक है, so if we calculate in degree of vertex A. As I have told you, in degree of a vertex is defined to be as the number of edges which are treating that vertex as the terminal vertex. तो वो सभी edges जिसके लिए A जो है terminal vertex है, वो उसके count को जो है हम in degree बोल रहे हैं. So tell me what is the value of in degree of A? Why it is 2? Yes, Nitya, you are saying 2. That is correct. But why it is 2? Yes, you are saying, Tushar, one from loop and the other one. Okay. So here in this graph, let me one thing do. Here, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में देखो आप, ये वर्टेक्स ए है, इस पे हमें वो एजेस देखनी है जो इस पे इसको एज ए टर्मिनल वर्टेक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि वो सभी एजेस जो इस पे आ रही हैं दैट इज कॉल्ड टू बी इन डिग्री, और जो इससे जा रही हैं दैट इज कॉल्ड टू बी एज आउट डिग्री. ठीक है, तो इस पे इनकमिंग एजेस कौन कौन सी हैं? एक तो ये है 1 एंड एक लूप एज है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई द इन डिग्री फॉर वर्टेक्स ए इज 2. If you talk about out degree of that vertex, so what is the out degree here? तो ये एक एज है आउटगोइंग, ये एक एज है आउटगोइंग 2, ये एक एज है आउटगोइंग 3, और एक जो है लूप की वजह से, क्योंकि मैंने बताया था अगर किसी वर्टेक्स पे लूप है तो इन डिग्री में भी 1 का कंट्रीब्यूशन होता है उसका, और आउट डिग्री में भी 1 का कंट्रीब्यूशन होता है. So that's why the in out degree for vertex A will be 4. In the same way you can define for other vertices. अगर हम B की बात करें तो इसकी इन डिग्री कितनी हो जाएगी? 2. ये एक इनकमिंग एज है और ये एक इनकमिंग एज है, तो इन दोनों एजेस के लिए ये एज है टर्मिनल वर्टेक्स है. ठीक है, और ये आउटगोइंग एज है, इसकी वजह से ये सोर्स वर्टेक्स है, तो इसलिए इसका इन डिग्री हो गया 2 और आउट डिग्री हो गया 1. ठीक है, वर्टेक्स बी के लिए इन डिग्री हो गया 2 और आउट डिग्री 1. इन द सेम वे फॉर वर्टेक्स सी, व्हाट इज द इन डिग्री हियर? तो ये इनकमिंग एज है, ये इनकमिंग एज है और एक लूप है, तो ये 3 इनकमिंग एजेस हैं, तो दैट्स व्हाई द डिग्री इन डिग्री फॉर वर्टेक्स सी विल बी 3. एंड इफ यू टॉक अबाउट आउट डिग्री, तो ये आउटगोइंग एज है और ये एक लूप की वजह से, तो आउट डिग्री इसका कितना हो गया? 2. ठीक है, तो सी का आउट डिग्री हो गया 2. ओके, ऐसे ही हम डी के लिए बात कर सकते हैं. तो डी के लिए देखो इनकमिंग एजेस कितनी है, तो 1 ये इनकमिंग एज है और ये एक इनकमिंग एज है, तो इसका इन डिग्री हो गया 2. अगर हम आउट डिग्री देखें तो ये आउटगोइंग एज है और ये आउटगोइंग एज है, तो इसलिए इसका आउट डिग्री हो गया 2. ठीक है, तो डी के लिए इन डिग्री आउट डिग्री दोनों ही 2 हो गया. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ई, ई के लिए इनकमिंग एजेस कितनी है? तो 1 और ये 2 और एक लूप, तो इन डिग्री कितना हो गया? 3,
अगर हम आउट डिग्री कैलकुलेट करें तो एक लूप की वजह से एक ये आउटगोइंग एज है और ये एक आउटगोइंग एज है, तो टोटल कितना हो गया 3। तो इसके लिए 3 हो गया। अगर हम एफ वर्टेक्स की बात करें तो ये एक पेंडेंट वर्ट, ये जो है आइसोलेटेड वर्टेक्स है, इसकी इन डिग्री आउट डिग्री दोनों ही क्या होंगे 0, क्योंकि यहाँ से ना कोई एज स्टार्ट हो रही है और ना ही यहाँ पे कोई एज टर्मिनेट हो रही है। तो दैट्स वाई फॉर now one thing you have to consider about here, if yes Prateek, let me unmute you. हाँ बोलो प्रतीक। सर इन डिग्री ऑफ ए 3 होना चाहिए ना? इन डिग्री ऑफ ए ए, ओके। अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए में देखो इनकमिंग एजेस कितनी है। ये इनकमिंग एज है, ए पे जा रही है, ठीक है। एक लूप हो गया, 2, और कोई इनकमिंग है नहीं है, क्योंकि ये आउटगोइंग एज है, ये आउटगोइंग एज है, ये आउटगोइंग एज है, तो इनकमिंग तो 2 ही है ना, ठीक है। एक ये है और एक लूप है, हाँ ठीक सर, ठीक है। मैंने गलत देखा। ओके ओके, थैंक यू। नाउ बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट कि इसमें हमारे पास हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इसमें जो है सभी वर्टिसेस के लिए इन डिग्री और आउट डिग्री डिफाइन कर लिया। इन डिग्री का सिंपल मीनिंग ये है कि हमें सभी वो एजेस देखनी है जो इनकमिंग एजेस है, मतलब वो सभी एजेस जो उस वर्टेक्स पे आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी एज कंट्रीब्यूटेड टू बी इन इन डिग्री, और जो सभी एजेस जो उससे बाहर जा रही हैं दैट इज कॉल्ड टू बी एज कंट्रीब्यूटेड टू आउट डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स, ठीक है। So this is the definition for this in degree and out degree. प्रिया, वी आर टेकिंग 2 फॉर द लूप, लेकिन 1 जो है हम इनकमिंग 1 जो है उसके इन डिग्री में कंसिडर कर रहे हैं और 1 जो है आउट डिग्री में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ होता, अगर ये लूप जो है अनडायरेक्टेड होता, तो उस केस में इस वर्टेक्स ए की डिग्री में लूप का कंट्रीब्यूशन 2 का होता, क्योंकि वहां पे हम सिंपल डिग्री लिखते हैं। लेकिन ये डायरेक्टेड लूप है, इसलिए इसके इनकमिंग में मतलब इन डिग्री में हम 1 का कंट्रीब्यूशन लेंगे और आउट डिग्री में भी 1 का कंट्रीब्यूशन लेंगे। तो जब भी आपका किसी डायरेक्टेड ग्राफ में लूप होता है तो उस लूप की वजह से इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों में ही 1 का एडिशन होता है। ओके, नाउ वन थिंग वी हैव टू वेरीफाई हियर, अगर हम इस सभी इन डिग्री का सम कर दें, ठीक है, इफ यू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द इन डिग्रीज, तो इट विल बी 2 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 0, ओके। कितनी वैल्यू है? तो नित्या यू आर सेइंग 12, yes it is 12, 3 3 6 8 10 12, okay, so it is 12 here. The sum of in degree of vertices is 12, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 12। और अगर हम आउट डिग्री का सम करें तो 4 plus 2 plus 3 plus 1 plus 2, yes, so yes, both are equal, it is also 12, 4 plus 1 5 7 9 and 3 12, yes, it is 12. Now let us count the number of ages in this graph. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, okay. So we have
12 edges in this graph. Okay. So for undirected graph, we have stated that the sum of degree of vertices is 2 times number of edges. Now, this theorem is modified in context to directed graph, and here we are saying that the sum of in degree of vertices is equals to sum of out degree of vertices is equals to the number of edges in the graph, in the direct sorry in the directed graph. ठीक है, तो अगर हम इसी हैंड शेकिंग थ्योरम को डायरेक्टेड ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहां पे हम ये बोल रहे हैं कि सभी इन डिग्री का सम जो है सभी आउट डिग्री के सम के इक्वल होगा, और जो कि नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन डिग्री का सम भी 12 है, आउट डिग्री का सम भी 12 है, और नंबर ऑफ एजेस भी 12 है। ठीक है, तो दिस इज द हैंड शेकिंग थ्योरम इन कॉन्टेक्स्ट टू डायरेक्टेड ग्राफ। क्योंकि यही अगर डायरेक्शन हटा दें तो इन डिग्री आउट डिग्री मर्ज हो जाएगा, तो नाउ इट बिकम्स 12 + 12 24 which is 2 times number of edges, and that is 12. ठीक है, so by this way we have defined this, the concept of degree, in degree, out degree, handshaking theorem for directed and undirected graph. Any confusion up to here? You can ask. Yes, anyone? Okay, now we are moving to the next one. जो मैंने अभी बताया आपको कि sum of in degree of vertices is equals to sum of out degree of vertices, and that is equals to number of edges. ठीक है, तो this will be the concept for directed graph. और यही अगर हम अनडायरेक्ट की बात करते हैं तो ये और ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, इन डिग्री और आउट डिग्री, तो therefore this becomes 2 times number of edges. ठीक है, so this is called to be as handshaking theorem in context to directed graph. ठीक है, okay, now we are moving to the next one. Next thing we have to discuss about is the types of graph. We will consider various types. ठीक है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हम क्लास ग्राफ को जो है कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा फाइनाइट ग्राफ, इनफाइनाइट ग्राफ, फिर हमने पढ़ा आपका दैट इज सिंपल ग्राफ, यू कैन से मल्टी ग्राफ, सूडो ग्राफ, फिर हमने डिस्कस किया डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो अब हम कुछ और टाइप को भी डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जिसमें से हम डायरेक्टेड ग्राफ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब the graph having directed edges is called to be as directed graph. ठीक है, so now we are going to define some other types also. So sir, you are saying we are taking about all the edges or in edge or out edge? नहीं, whenever we are talking about directed graph, in that case we have to consider, we have to define in degree and out degree. डायरेक्टेड ग्राफ के केस में डिग्री नहीं होता है। ठीक है, किसी भी वर्टेक्स के लिए हम डिग्री डिफाइन नहीं करेंगे, किसी भी वर्टेक्स का हम इन डिग्री और आउट डिग्री डिफाइन करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी वर्टेक्स पे एज है तो वो डिग्री में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, वो उसके इन डिग्री और आउट डिग्री को डिफाइन करता है, क्योंकि जो एज है उसमें डायरेक्शन है। ठीक है, so that's why whenever we are talking in context to directed graph, we have to consider for in degree and out degree of the vertex. Whenever we have to talk about undirected graph, so here we can say only degree of a vertex, क्योंकि वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो अगर दो वर्टिसेस के बीच में एज है तो वो सिंपली ये कहता है कि वो एडजेसेंट है। ठीक है, so that's why there we are talking about degree. Okay, so here we are saying what can be the different types. Yes Tushar, it is equal in degree। अभी हमने पहले प्रीवियस एग्जांपल में किया भी है कि जो
ये लुक एट दिस वन। यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने बताया कि अगर हम सभी इन डिग्री का सम करें तो ये वैल्यू 12 होगी, सभी आउट डिग्री का सम करें तो ये वैल्यू 12 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 12 एजेस हैं। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो दिस ग्राफ हैज 12 एजेस which is equals to sum of in degree of vertices which is equals to sum of out degree of vertices. So therefore the theorem says that sum of in degree is equals to sum of out degree which is equals to number of edges in the directed graph. ठीक है? Okay. So here we are talking about types of graph, जिसमें हमने पहले जो डिस्कस किया वो डायरेक्टेड ग्राफ था. Next we have to discuss about some other type. So let us do this. Complete graph. First thing we are going to define is complete graph. So look at this definition. Complete graph on n vertices is denoted by Kn, capital K, and n as a subscript. Is the simple graph that contains exactly one edge between each pair of vertices. ठीक है? अगर किसी ग्राफ में हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में केवल एक एज है तो उस केस में उस ग्राफ को हम कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं. यानी कि देयर इज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस. तो जितने वर्टेक्स हैं सभी वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज कंप्लीट ग्राफ. इसको हम के एन से डिनोट करते हैं, जहां पे एन जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस को डिनोट करता है. तो अगर हम K1 बोलेंगे तो एक वर्टेक्स लेंगे, अगर हम K2 बोलते हैं तो हम दो वर्टेक्स लेंगे, अगर हम K3 बोलते हैं तो तीन वर्टेक्स लेंगे, एंड सो ऑन. ठीक है? तो दिस इज द एग्जांपल. पहला ग्राफ K1 है क्योंकि एक ही वर्टेक्स है. ठीक है? दूसरा ग्राफ K2 है क्योंकि यहाँ पे दो वर्टिसेज हैं. तीसरा ग्राफ K3 है क्योंकि यहाँ पे 3 वर्टिसेज हैं. ठीक है? चौथा ग्राफ हमने K4 लिया जिसमें 4 वर्टिसेज हैं, K5, K6 and so on. So by this way we can draw complete graph with n vertices. The property we have to ensure is each vertex must be adjacent to all other vertices. यानी कि there is an edge from one vertex to all other vertices. ठीक है? तो जैसे अगर हम K2 की बात करें तो दो वर्टिसेज हैं, तो ये वर्टेक्स इससे कनेक्टेड होगा, ये वर्टेक्स इससे कनेक्टेड होगा, तो इसलिए एक ही एज होंगी. अगर हम K3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, K3 में 3 वर्टिसेज हैं, तो इसलिए ये वर्टेक्स जो है बाकी के दोनों वर्टिसेज से कनेक्ट होगा, ये वर्टेक्स जो है ये बाकी के दोनों से कनेक्टेड है, ये वर्टेक्स जो है ये बाकी के दोनों से कनेक्टेड है. ऐसे ही K4 की अगर हम बात करें तो K4 में ये वर्टेक्स जो है बाकी तीनों से कनेक्टेड होगा, ये वर्टेक्स जो है बाकी तीनों से कनेक्टेड होगा, ये वर्टेक्स जो है रिमेनिंग 3 से कनेक्टेड होगा, ये वर्टेक्स जो है रिमेनिंग 3 से कनेक्टेड होगा. तो कोई सा भी आप पेयर ऑफ वर्टेक्स ले लो, सभी पेयर के बीच में एक ही एज है. जैसे अगर हम सपोज ये और ये वर्टेक्स ले लें तो इसके बीच में भी एक एज है. अगर हम ये और ये वर्टेक्स ले लें तो इसके बीच में एक एज है. अगर हम ये और ये वर्टेक्स ले लें तो इसके बीच में भी एक एज है. ठीक है? तो आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो कि सभी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में केवल एक एज है. ओके, यस जानवी, इट इज करेक्ट. दिस इज लीडिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मेश टोपोलॉजी. मेश टोपोलॉजी में यही होता है कि हम जो है जहाँ जो आपका सेंट्रल नोड होता है, नहीं, मेश टोपोलॉजी में जो है सभी नोड्स जो हैं सभी दूसरे नोड से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है? आपने पढ़ा होगा मेश टोपोलॉजी. और एक होता है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल नोड होता है और उससे सभी जो है वर्टिसेस कनेक्टेड होती हैं. ठीक है? यहाँ मेश टोपोलॉजी में जो है सभी वर्टिसेस सभी दूसरे वर्टिसेस से कनेक्टेड होते हैं. तो वही चीज यहाँ पे भी है. वो ये जो कंप्लीट ग्राफ का कॉन्सेप्ट है वो उसको डिफाइन कर सकता है. ठीक है? इज इट क्लियर? कंप्लीट ग्राफ, whenever we have to draw Kn, we have to draw complete graph of n vertices. और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ग्राफ है उसमें सभी वर्टिसेस सभी दूसरे वर्टिसेस से कनेक्टेड होंगे. ठीक है?
तो यहाँ से हम क्या क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं? तो के एन में नंबर ऑफ वर्टिसेज एन हो गई, नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? यस, व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ के एन? Yes, Janvi, you are correct. It is n into n minus 1 by 2. Okay, it is n into n minus 1 by 2. Number of edges in the graph kn will be n into n minus 1 by 2. Okay, और इसीलिए आगे जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, कैसे हम किसी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहां से हम ये डिफाइन करते हैं कि किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है वो कितनी होगी, n into n minus 1 by 2. Whenever we are talking about simple graph, means we are not allowing multiple edges and we are not allowing loops, तब हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल कितनी होती है, n into n minus 1 by 2। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी, n into n minus 1 by 2। ओके, दूसरा एक और चीज हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं, अगर देखो आप इन ग्राफ्स को, तो सभी वर्टिसेज के एन में सभी वर्टिसेस की डिग्री कितनी है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ के एन? यस जानवी, यू आर करेक्ट, इट इज n minus 1। जैसे अगर हम K2 की बात करें तो सभी वर्टिसेस की डिग्री 1 है, अगर हम K1 की बात करें तो सभी वर्टिसेस की डिग्री 0 है, अगर हम K3 की बात करें तो सभी वर्टिसेस की डिग्री 2 है। डिग्री 2 इसलिए क्योंकि दो एजेस हैं सभी वर्टिसेस से। ऐसे ही अगर हम K4 की बात करें तो सभी वर्टिसेस की डिग्री 3 है। ठीक है, K5 लें तो सभी वर्टिसेस की डिग्री 4 है, एंड सो ऑन। तो हमने तीन रिजल्ट कंक्लूड किया। के एन में नंबर ऑफ वर्टिसेस हमेशा n होगी, नंबर ऑफ एजेस हमेशा n into n minus 1 by 2 होगी, और डिग्री ऑफ वर्टिसेस हमेशा n minus 1 होगी। ठीक है, तो आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी। आपने हैंड शेकिंग थ्योरम पढ़ा हुआ है। हैंड शेकिंग थ्योरम ये कहता है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इक्वल्स टू 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस। तो अगर डिग्री ऑफ वर्टिसेस जो है n minus 1 है और नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है n है, तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस कितना हो गया, n into n minus 1। ठीक है, अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री n minus 1 है और नंबर ऑफ वर्टेक्स n है, तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितना हो गया, n into n minus 1 by n minus 1, एंड दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस, यानी कि नंबर ऑफ एजेस कितना हो गया, n into n minus 1 by 2। ओके, so by this way we have defined complete graph. Yes, any queries in this you can ask. Anyone having doubts in this complete graph, you can ask. We have defined three things. Kn में number of vertices हमेशा n होगी, number of edges हमेशा n into n minus 1 by 2 होगी, और degree of vertices हमेशा n minus 1 होगी। So these are the three conclusions or three properties in context to complete graph. Yes, now I'm moving to the next one. Here we are going to talk about some special simple graphs. ठीक है, सिंपल ग्राफ का मतलब इट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ इन विच मल्टीपल एजेस और लूप्स आर नॉट अलाउड, so this is called to be a simple graph. अब इस सिंपल ग्राफ के कुछ स्पेशल टाइप हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला टाइप लिया साइकिल्स। साइकिल्स को हम CN से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूनिवर्सल कन्वेंशन है, तो जरूरी नहीं है आपको साइकिल्स लिखा हो, आपको CN भी लिख के दे सकता है, ड्रॉ C6। तो इट इज अंडरस्टूड दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट साइकिल 6। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस को डिनोट करता है। साइकिल्स जो है हमेशा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए डिफाइन होता है, यानी कि हम C1 C2 डिफाइन नहीं कर सकते। एज यू नो, कभी भी लूप ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर मिनिमम 3 वर्टिसेस। ठीक है, तो
ये हमारा यहाँ पे साइकिल का कॉन्सेप्ट है। साइकिल ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 3 वर्टिसेस की जरूरत होगी, क्योंकि अगर 2 वर्टिसेस हैं तो उसमें हम साइकिल नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वो लाइन बन जाएगा। साइकिल बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 वर्टिसेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो देयरफॉर साइकिल्स आर डिफाइंड फॉर n greater than equals to 3, मीन्स आप C3 ड्रॉ कर सकते हो, C4 ड्रॉ कर सकते हो, C5 ड्रॉ कर सकते हो, एंड सो ऑन, कोई सा भी। लेकिन C3 से पहले जैसे C1 और C2 ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ n वर्टिसेस, क्योंकि यहाँ पे जब हम Cn बोल रहे हैं तो n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस है। और एजेस की अगर हम बात करें तो एजेस क्या होंगी, तो V1 वर्टेक्स से V2 वर्टेक्स कनेक्टेड होगा, V2 वर्टेक्स से V3 वर्टेक्स कनेक्टेड होगा, V3 से V4 कनेक्टेड होगा, एंड सो ऑन। Vn-1 से Vn कनेक्टेड होगा, और लास्टली Vn जो है V1 से कनेक्टेड होगा। तो जैसा कि साइकिल का मीनिंग होता है, पहला दूसरे से कनेक्टेड होगा, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड होगा, और तीसरा फिर पहले से कनेक्टेड होगा। तो नाउ इट बिकम्स अ साइकिल, ठीक है। तो हियर वी हैव ड्रॉन दिस सम साइकिल्स। C3 ड्रॉ किया हमने, 3 वर्टिसेज हैं, तो ये साइकिल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि पहला ये वर्टेक्स इससे कनेक्टेड है, ये वर्टेक्स इससे कनेक्टेड है, और ये वर्टेक्स फिर से इससे कनेक्टेड है। तो अगर हम इसको V1 बोले, इसको V2 बोले, इसको V3 बोले, तो V1 V2 के बीच में एज है, V2 V3 के बीच में एज है, और V3 V1 के बीच में एज है, ठीक है। ऐसे ही ये C4 हो गया, ये C5 हो गया, ये C6 हो गया, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ फॉर एनी Cn। यस, एनी डाउट्स इन दिस यू कैन आस्क। तो अब हम क्या क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। वन थिंग यू मस्ट रिमेम्बर कि हमने जो यहाँ पे हम ये जो टाइप बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव टाइप नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हम कोई कंप्लीट ग्राफ है तो वो साइकिल नहीं होगा, या साइकिल है तो कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा, या वो रेगुलर ग्राफ नहीं होगा, या वो सिंपल ग्राफ नहीं होगा। तो ये सभी जो है ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये कोई जो है डिस्क्रीट ये क्लासिफिकेशन नहीं है इसका, ठीक है। ओके, तो हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं साइकिल्स की बात। तो साइकिल का मतलब, साइकिल का कॉन्सेप्ट यही है कि हर एक वर्टेक्स जो है यहाँ पे एक साइकिल के फॉर्म में कनेक्टेड होना चाहिए। पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, पांचवा पहले से, एंड सो ऑन। ओके, सो यस, इट इज रिंग टोपोलॉजी। जानवी, आप इसको नेटवर्क से रिलेट कर रहे हो। नेटवर्क्स में भी आपने पढ़ा होगा इसको, कि जो टोपोलॉजीज होती हैं, तो अगर हम टोपोलॉजी से कंपेयर करें तो ये रिंग टोपोलॉजी का एग्जांपल है, क्योंकि ये हमेशा एक रिंग फॉर्म करेगा। रिंग का मतलब यहाँ पर साइकिल ही है, ठीक है। तो देखो आप इसको क्या क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्टिसेस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमेशा n होगा। C3 में 3 है, C4 में 4 है, C5 में 5 है, C6 में 6 है। नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो नंबर ऑफ एजेस भी हमेशा n है। C3 में 3 एजेस हैं, C4 में 4 एजेस हैं, C5 में 5 एजेस हैं, ठीक है। तो दो चीजें हमने निकाली कि अगर हम Cn ग्राफ की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, नंबर ऑफ एजेस भी n है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि Cn ग्राफ में डिग्री ऑफ वर्टेक्स हमेशा कितना होगा, 2, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, कि यस निधि, यू आर करेक्ट, इट इज 2। क्योंकि आप देखो जितने भी वर्टिसेज हैं सभी की डिग्री 2 है, क्योंकि सभी से 2 एजेस कनेक्टेड है, सभी वर्टिसेज से केवल 2 एजेस कनेक्टेड। तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया कि साइकिल्स के लिए 3 चीज हमने कंक्लूड करी। पहला ये कि नंबर ऑफ वर्टिसेस हमेशा n होगा, दूसरा ये नंबर ऑफ एजेस हमेशा n होगा, और तीसरा डिग्री ऑफ वर्टिसेस हमेशा 2 होगा। और इसी के बेसिस पे हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड टू बी एज रेगुलर ग्राफ, ठीक है। हम एक और डेफिनेशन बताने जा रहे हैं आपको, दैट इज कॉल्ड टू बी एज रेगुलर ग्राफ। ओके,
तो any graph is called k regular graph. Here k is the constant term. ये साक्षी, इट इज करेक्ट कि हमने बताया आपको कि साइकिल्स में जो वर्टिसेज हैं उसकी डिग्री हमेशा 2 ही होगी। ठीक है, 2 के अलावा और कोई क्वांटिटी नहीं हो सकती। हमने 3 कंक्लूजन लिया था। पहला, नंबर ऑफ वर्टिसेज हमेशा n होगा। दूसरा, नंबर ऑफ एजेज हमेशा n होगा। और तीसरा, डिग्री ऑफ वर्टिसेज हमेशा 2 होगा। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि रेगुलर ग्राफ, तो एनी ग्राफ इज कॉल्ड टू बी एज k रेगुलर ग्राफ इफ ऑल द वर्टिसेस आर ऑफ डिग्री k। ठीक है, अगर किसी सिंपल ग्राफ में सभी वर्टिसेस k डिग्री के हैं तो उसको हम k रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट Cn, जो Cn ग्राफ है, दिस इज ऑल्सो अ 2 रेगुलर ग्राफ। Cn is 2 रेगुलर ग्राफ। 2 रेगुलर इसलिए क्योंकि यहाँ पे सभी वर्टिसेस हमेशा 2 डिग्री की होंगी। So here we are saying that Cn is 2 regular graph because here the degree of each vertex is 2. तो हमने रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन आपको बताई कि any graph is called to be as k regular graph whenever all the vertices are of degree k. Cn जो है ये एक 2 रेगुलर ग्राफ है। Yes, any doubts in this definition you can ask. So we have defined cycles. ठीक है, now we are going to define next special type of simple graph. It is called to be as wheels. Yes, Sahil, you are correct. All cycles are always regular graph, and that is always 2 regular graph. Okay, Cn is always 2 regular graph. Okay, now here we are saying about the other type. It is called to be as wheels. ठीक है, wheels को हम Wn से डिनोट करते हैं। ठीक है, wheels को हम Wn से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता, जो कि अभी तक था। ठीक है, सो हाउ टू ऑब्टेन व्हील्स, तो इसके लिए मैंने लिखा है वी हैव टू ऐड एन एडिशनल वर्टेक्स टू साइकिल Cn and connect this additional vertex to each of the n vertices of Cn. So then we can obtain wheels, और wheels को हम Wn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Cn से जो wheel मिलेगा that is called to be as Wn, Wn। ठीक है, तो C3 से जो मिलेगा वो W3 होगा, C4 से जो मिलेगा वो W4 होगा, C5 से जो ऑब्टेन होगा वो W5 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आपको W3 ड्रॉ करना है तो उसके लिए पहले आपको C3 ड्रॉ करना होगा, और एक जो है वर्टेक्स लेना होगा इनसाइड द साइकिल और उसको सभी वर्टिसेस से कनेक्ट करना होगा। ये ग्राफ। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर हम इसको हटा दें तो ये आपका C3 था, फिर हमने एक नया वर्टेक्स इंक्लूड किया और इस नए वर्टेक्स को सभी वर्टिसेस से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही ये W4 हो गया, ये आपका W5 हो गया और ये आपका W6 हो गया। ठीक है, तो कभी भी आपको Wn ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको Cn ड्रॉ करना होगा और उस Cn में एक हमें नया वर्टेक्स इनसाइड लेना होगा और उस वर्टेक्स को Cn के सभी वर्टिसेस से कनेक्ट करना होगा न्यू एजेस के साथ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज Wn। okay, that is wheels।
तो ये W3 है, W4 है, W5 है, W6 है। ओके, so first thing we have to conclude what is number of vertices here. The number of vertices will always be n plus 1. प्लस 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम हर बार एक वर्टेक्स अलग से ऐड कर रहे हैं, Cn में एक नया वर्टेक्स हम ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम W3 की बात करें तो 4 वर्टिसेज हैं, W4 की बात करें तो 5 वर्टिसेज हैं, W5 की बात करें तो 6 वर्टिसेज है, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। नहीं, हियर n इज नॉट द नंबर ऑफ वर्टिसेस, क्योंकि अगर आप n को नंबर ऑफ वर्टिसेस लिखते हो तो आपको इसको W3 ना बोल के W4 बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप n को अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे इसको W3 ना बोल के आपको W4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो देयरफॉर हियर वी आर सेइंग दैट in any will Wn, the number of vertices will always be n plus 1, because Wn is obtained by Cn, where Cn is a cycle of n vertices. ठीक है, so number of vertices आपकी n plus 1 हो गई। number of edges के लिए बताओ। तो देखो, अगर हम W3 की बात करें तो n की वैल्यू 3 है और नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 6। यस अतुल, इट इज 2n, यू आर करेक्ट, इट इज 2n। तो किसी भी WN ग्राफ के लिए नंबर ऑफ एजेस हमेशा क्या होगा? 2n। ठीक है, किसी भी WN ग्राफ के लिए नंबर ऑफ एजेस क्या होगा? 2n। तो W3 में देखो नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 6। W4 में देखो नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 8। W5 में देखो नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 10, एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिग्री ऑफ वर्टिसेस, हाँ, एक चीज इसमें डिफरेंस है कि जो डिग्री ऑफ वर्टिसेस हैं वो हमेशा कितनी है? 3 है। ठीक है, एक्सेप्ट द इनर वर्टेक्स। ठीक है, ये याद रखने वाली बात, अगर इनर वर्टेक्स का भी 3 होता तो हम इसको 3 रेगुलर ग्राफ बोल देते, लेकिन यहां पे देखो आप कि जो डिग्री ऑफ वर्टिसेज हैं WN में वो हमेशा क्या है? 3 है, एक्सेप्ट द इनर वर्टेक्स। ठीक है, इनर वर्टेक्स की डिग्री हमेशा n होती है। जैसे W3 की बात करें तो इनर वर्टेक्स की वैल्यू जो है, सॉरी, इनर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 3 है। हाँ, तो अगर हम इसको चलो नेटवर्क में लेके जाते हैं, आपने टोपोलॉजी की बात कर रहे हो, तो ये कौन सी टोपोलॉजी है? यस, किस टोपोलॉजी से इसको कनेक्ट कर सकते हो? यस नित्य, यू आर करेक्ट, इट इज हाइब्रिड। ओके, ये इज इट स्टार? लेकिन आपको याद होगा स्टार में जो है, जो सेंट्रल नोड होता है उससे सभी वर्टिसेस, सभी नोड जो है कनेक्टेड होते हैं। ऐसा ही होता है क्या? तो ये आपका विल्स है। तो विल्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हाँ, सही कह रहे हो आप अतुल।
स्टार होने के लिए जो है केवल सेंट्रल नोड से सभी नोड कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो बाहर हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपस में भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये स्टार नहीं हो सकता। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और इट इज हाइब्रिड ऑफ रिंग एंड स्टार। ठीक है, ओके। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस व्हील्स। व्हील्स में मैंने आपको दो चीजें बताई। सबसे पहले कि नंबर ऑफ, हाँ साहिल यू आर करेक्ट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड रिंग। अगर हम इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करें तो हमेशा n+1 होगा। नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो 2n होगा। नंबर ऑफ जो डिग्री ऑफ वर्टिसेस की बात करें तो डिग्री ऑफ वर्टिसेस हमेशा 3 होगा, एक्सेप्ट द इनर नोड। इनर नोड की डिग्री हमेशा n होगी। ठीक है, so this is about wheels, which is obtained by cycle Cn by adding a new vertex inside the Cn graph and connecting it to the all vertices of Cn by new edges. ठीक है, now next special type is n cubes. yes, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले साइकिल्स। साइकिल्स को हम Cn से डिनोट करते हैं। फिर मैंने बताया व्हील्स। व्हील्स को हम Wn से डिनोट करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया n क्यूब्स। n क्यूब्स को हम Qn से डिनोट करते हैं, Qn। ठीक है, तो दिस इज n डायमेंशनल हाइपर क्यूब और n क्यूब डिनोटेड बाय Qn इज द ग्राफ। ठीक है, Qn ग्राफ किस लिए यूज होता है? तो इट हैज वर्टिसेस representing the 2 to power n bit strings of length n. ठीक है, now what the meaning of this term 2 to power n bit strings of length n? ठीक है, तो लेट मी डू दिस। अगर हम वन लेंथ की बात करें तो 2 टू पावर n का मतलब 2 टू पावर 1, यानी कि 2 बिट स्ट्रिंग्स होंगी वन लेंथ की। तो वन लेंथ की 2 बिट स्ट्रिंग क्या है? 0 और 1। ठीक है, 2 लेंथ की 2 टू पावर 2 यानी कि 4 बिट स्ट्रिंग होगी। और 4 बिट स्ट्रिंग क्या होगी जरा बताओ? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 3 लेंथ का बिट स्ट्रिंग लेना हो तो 3 लेंथ की टोटल 2 टू पावर 3 यानी कि 8 बिट स्ट्रिंग्स होंगी। द वैल्यूज विल बी 000, okay, and it will be continued up to 111। तो आपको पता है कैसे लिखना है इसको? 000 001 00 010 011 100 101 110 111। ठीक है, तो ये क्या हो गए? टोटल 8 बिट स्ट्रिंग्स हो गए। तो ये मीनिंग है। सो वेन एवर वी आर सेइंग ग्राफ Qn, it will consist of how many vertices? 2 to power n vertices। तो अगर हमें Q1 ड्रॉ करना है तो उसमें कितने वर्टिसेज होंगे? 2, जहां पे एक वर्टेक्स 0 बिट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वर्टेक्स 1 बिट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर हम ग्राफ Q2 की बात करें तो कितनी वर्टिसेज होंगी? 2 टू पावर 2 यानी कि 4, जहां पे एक वर्टेक्स 0 0 को रिप्रेजेंट करेगा, एक वर्टेक्स 0 1 को रिप्रेजेंट करेगा, एक वर्टेक्स 1 0 को रिप्रेजेंट करेगा और एक वर्टेक्स 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम Q3 की बात करें तो कितने वर्टिसेज होंगी? 2 टू पावर 3 यानी कि 8, जहां पे हर एक वर्टेक्स एक बिट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। 000 001 010 011 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस Qn ग्राफ। अब इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि दो वर्टिसेज एडजेसेंट तभी होंगी whenever the bit string they represent differ in exactly 1 bit position।
ठीक है। तो दो वर्टिसेस जो है एडजेसेंट तभी होंगी जब उस वर्टेक्स से रिप्रेजेंट होने वाली जो आपका बिट स्ट्रिंग है वो केवल एक बिट पोजीशन पे डिफरेंट हो। जैसे 0 और 1 ये सिंगल बिट पोजीशन पे डिफरेंस कर, ठीक है। 0001 ये भी सिंगल बिट पे डिफरेंस है। 0010 ये भी सिंगल बिट डिफरेंस है। लेकिन 0110 ये एडजेसेंट होंगी। यस टेल मी। 0110 ये एडजेसेंट नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों में 2 बिट का डिफरेंस है। इसी तरीके से 0011 ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों में 2 बिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है जो हमें एन क्यूब में मेंटेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करें तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमेशा 2 टू पावर n होगा, जहां पे हर एक वर्टेक्स जो है 2 टू पावर n बिट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा n लेंथ के। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ। अगर हम Q1 की बात करें तो मैंने बताया कि 2 वर्टिसेज होंगे जो कि 2 1 लेंथ बिट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम Q2 की बात करें तो 4 वर्टिसेज होंगे जो कि 4 2 लेंथ बिट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। Q3 की बात करें तो 8 वर्टिसेज होंगी जो 8 बिट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे 3 लेंथ की। ठीक है, अब देखो इसमें 0 और 1 एडजेसेंट है क्योंकि 1 बिट का डिफरेंस है। 0010 एडजेसेंट है क्योंकि 1 बिट का डिफरेंस है। 0001 एडजेसेंट है क्योंकि 1 बिट का डिफरेंस है। ऐसे ही है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इन दोनों में 2 बिट का डिफरेंस है। इन दोनों में 2 बिट का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, जो भी एडजेसेंट होंगे हमेशा केवल 1 बिट पे डिफरेंस कर रहे होंगे। ये दोनों में 1 बिट का डिफरेंस है, ये दोनों में 1 बिट का डिफरेंस है, ये दोनों में 1 बिट का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है? तो इसका बहुत आसान तरीका है जिसमें ये बोला गया है कि जब भी हमें क्यू एन ड्रॉ करना हो, ठीक है, जस्ट लिसन इट, जब भी हमें क्यू एन ड्रॉ करना हो तो हम 2 बार क्यू एन माइनस 1 ड्रॉ कर लेते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, जैसे आपको Q2 ड्रॉ करना है तो आप Q1 को 2 बार ड्रॉ कर लो। ये एक Q1 हो गया, ये दूसरा Q1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको Q3 ड्रॉ करना है तो 2 बार Q2 को ड्रॉ कर लो। तो ये पहला Q2 हो गया। लुक एट दिस वन, लेट मी यूज दिस। ठीक है, ये आपका पहला Q2 हो गया और ये वाला जो है बाहर वाला ये दूसरा Q2। ठीक है, अगर आपको Q2 ड्रॉ करना है तो एक बार ये Q1 हो गया और इसके ऊपर एक बार ये Q1 हो। ठीक है, और क्या करना है आपको कि पहले में 0 इंक्लूड करना है और दूसरे में 1 इंक्लूड करना है। जैसे ये 01 था, ये 01 था, इसमें हमने आगे 0 सफिक्स कर दिया, इसमें हमने आगे 1 सफिक्स कर दिया। और जब बिट जो है 1 बिट पोजीशन पर डिफरेंस कर रही हैं उनको हमने एडजेसेंट कर दिया। तो 0010 सिंगल बिट का डिफरेंस है तो एडजेसेंट कर दिया। 0111 सिंगल बिट का डिफरेंस है तो एडजेसेंट कर दिया। इन द सेम वे यहाँ पे लिख लिया 0001 ये। ठीक है, और यहाँ पे हमने दूसरा ड्रॉ कर लिया। पहले वाले में हमने 0 इंक्लूड कर दिया, दूसरे वाले में हमने 1 इंक्लूड कर दिया। ओके, इसको आप ऐसे समझो, जस्ट वेट। ये मैंने क्या बताया आपको कि एक के ऊपर दूसरा ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नीचे वाला। ठीक है, और ये हो गया आपका ऊपर वाला। ठीक है, तो देखो ये क्या है 0001। अगर हम ये वाला बिट छोड़ दें तो ये है 0001 1011
और ये है 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें हमने आगे 0 ऐड किया है, इसमें हमने आगे 1 ऐड किया, और फिर हमने एडजेसेंट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। वी कैन कंस्ट्रक्ट n+1 क्यूब Qn+1। अगर हमें n+1 क्यूब ड्रॉ करना हो, यानी Qn+1 ड्रॉ करना हो, तो n क्यूब यानी Q1 को 2 कॉपी ड्रॉ करेंगे, prefacing the labels on the vertices with a 0 in one copy and 1 in other copy। वही मैंने बताया कि एक में हम 0 आगे ऐड कर देंगे और एक में हम 1 आगे ऐड कर देंगे। एंड adding edges connecting two vertices that have labels differing only in first bit। तो केवल जो फर्स्ट बिट पे डिफरेंस कर रहे हैं उनको हम एजेस से कनेक्ट कर देंगे, यानी एडजेसेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, Q3 is constructed from Q2 by drawing two copies of Q2 as the top and bottom faces of Q3, adding 0 at the beginning of the label of each vertex in bottom face and 1 in the beginning of the label of each vertex in the top face। ठीक है, so by this way we can draw n cubes। okay, so this is all about simple graphs and their special types। ठीक है, रेगुलर ग्राफ में आपको ऑलरेडी ये बता चुका। ठीक है, तो in next class we will start with bipartite graph। up to here, if you are having any queries, you can just message me। thank you, we will stop here।